of code. With the reusability of code, you save your time, you save your processing time, okay, you save your storage, you save your computation, and when you are saving your time, obviously your program will improve. That's it. Okay, so understand what basically these functions are, and then I will correlate these function to the C++ programming language, and then I will take one example. If anyone having any question regarding this function, definitely after watching this session, after listening this session, your concept will be almost clear about function. Okay, so understand this concept first. The ring ceremony function. Okay, what exactly the ring ceremony? Let's suppose the ring ceremony function is there. Let's suppose on 14th of October, okay, there is a ring ceremony function. Okay, there is a ring ceremony function of, let's suppose, my brother. Okay, okay. In 18th of October, again there is a function, my friend ring ceremony, or you can say birthday, or you can say the brother marriage, anything. Okay, in 14th of October there is a function that is for my brother ring ceremony. In 18th of October there is a function, that function is, let's suppose, my friend's brother's ring ceremony or marriage, whatever that you want to say, you can say. Okay, understand this concept now into the real time term. I am not touching at this point of time C and C++. Okay, so what you will do, today is the 12th of October. Okay, today is 12. So on 10th October, I start preparing for this day. Okay, I start preparing for this day. I stitched my coat pant. Okay, my coat pant, my shoe, my socks. Okay, my handkerchief. I collected all them and put them into one Almira. Now I am satisfied. I am tension free. Okay, I know my preparation is ready. Okay, I prepare everything. I prepare everything. Now I am satisfied. I am fully satisfied. But the function is on 14, and I make my arrangements prior to this function. I stitch my code. I iron my shirt. Okay, I polished my shoe. Everything I ready on before this 14th of October. Okay, so on 14th of October, I used all these items. Okay, I use all these items. I attend the function. After attending the function, I come back to home and again place everything over there. Okay, again placed everything over there. So now I am again satisfied because 18th of October, I have to attend one more function. Okay, I have to attend one more function, and this time I am satisfied. I know it. Everything is ready and everything is in my Almira. I have to just pick it up and wear it and attend the function and come back and place over here. That's it. So what I did basically, I did reusability. I did use reusability. I save my time. I save my efforts. I am, tension free. I am satisfied. I know this is perfect. The stitching is perfect. Okay, the stitching is perfect. Everything is perfect. I am tension free. I can use it. Even I can use this thing. I can use this thing. Again, let's suppose there is a function on 20th of October. Yes, I can again wear this because I know everything is fine. Everything is well prepared. So what basically I did a reusability. I did a reusability. Okay. I prepare the things prior to this function, but in upcoming functions, I am the tension freely. I am freely use these things. I know they are error free. I know the fitting is very good. I know it suits on me. Okay, so this is the benefit. This is the benefit which I shows you right now. Okay, so now move to the technical things. So this one is the we understand the concept of the functions into the real time scenario. What exactly happens? Normally this happens to everyone except girls, except girls. तो गर्ल्स नहीं डालती, क्योंकि वो एक बार जो डाल लेती हैं वो कहती हैं कि हमारे
ये हमने अपने भाई के चाचा की ताई की लड़की में डाला था, तो वहां पे वो मासी की लड़की मिल गई थी, वो क्या बोलेगी कि ये ही ड्रेस डाली हुई है। ओके, तो गर्ल्स के केस में ये थोड़ा सा सेटल नहीं बैठता, लेकिन हाँ बॉयज के केस में वो हमारा एक ही कोट पैंट होता है, तो जब तक वो घस नहीं जाता हम उसको 5-10 शादियां तो कम से कम दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी फिर उसको 5 शादियों के बाद उसको ड्राई क्लीन करवाते हैं, ठीक है। ड्राई क्लीन करवाने के बाद फिर उसको छठी शादी में फिर डाल देते हैं, ठीक है जी। तो हमारे केस में ऐसा है, तो गर्ल्स के केस में थोड़ा सा सिनेरियो अलग है, तो डोंट टेक इट लाइक दैट, टू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। Okay, so now I understand this function concept into the real time scenario, what exactly happens, okay, what we normally do. So now I am moving to the technical things, I am moving to the technical things. The same thing, now here we don't have suit, okay, we don't have coat pant basically, okay, we don't have shirt, we don't have socks, we don't have shoe. What exactly here? Here the number of code, basically the number of lines of code, that's it, that is available, that is available. Now what I am doing, I am combining these number of lines, okay, these number of lines into a single unit, and that unit is called function. Now I tested it, I tested it, after tested it, I am fully satisfied this work fine, there is no bug, there is no error. Now I am using this number of lines, okay, I am using this number of lines and a number of time with one call. Let's suppose these are 100 lines. So if I want to use these 100 lines, I can use with one call, okay, with one call mean with one line, that's it, with one line. Again I can use it, I can use it a number of times. Just take a simple scenario. Let's suppose there is a function, okay, there is a function, and that function contains, let's suppose, 5 lines, okay, and this function is basically used for this, okay, for use for this, okay, this is your program, and I converted that program into your function. Now my client is saying I have to print, I have to print these things after 1 minute, or you can say after one transaction. Let's suppose the one person shop, okay, so I have to print it. Another person come and shop, I have to print it. Okay, now the thing is that let's suppose understand this very easy manner. Let's suppose these are the 5 lines, okay, these are the 5 lines. You don't know the function concept till now, you don't know the function concept till now, and I am saying you, what I am saying you, I am saying you have to print this thing 5 times, you have to print this thing 5 times. What you will do, what you will do, normal, you will write this 5 line one time, okay, again 2 time, again 3 time, again 4 time, again 5 time. So how many time that you execute this number of line? 5 into 5, 25 time. That's mean you write these repetitive line, okay, these are the same line 5 times. So how many time that you did it? 5 into 5, that's mean you did it 25 times. When you did it 25 times, the same thing that you did 25 times, now your space is used more, your space is used more. You take long time to type these lines, okay, you take long time, you waste your resources to execute. You are saying to compiler, okay, execute these things, execute these 25 line which are repeatedly which are same duplicates lines. So you wasted your time, you wasted your resource, even you wasted your computation power as well. So what is the solution for same? What is the solution for same? Very simple solution. What you are supposed to use, rather than to write this 25 line, I can do the same thing with 5 line. Yes, I can. How I can? First of all, that I have to convert this into the function. Okay, I converted it into a function. Now I have to assign a name to this. Let's suppose the name of this function is star. So I have to call this, that's it, star 1 time, star 2 time,
star 3 times, okay, star 4 times, and star 5 times. The output is exactly same. What I am saying, I'm calling these group of lines, okay, 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, 5 time. How many lines I written? I written just 5 lines only. That's it. Earlier, the same task is done with 25 of lines. Yes. Earlier, these things are done with 25 of times. So this is the beauty of the function. This one is the beauty of a function. You are combining the number of line into a single unit, and that unit can be used n number of times. And there is no limit how many times that you are supposed to use. Let's suppose if I am saying 100 of time that you are supposed to do, you can write this line 100 of times. Why I am writing 100 of times? I can use for loop. For I is equal to 0, I less than equals to less than 100. Okay, I plus plus, and I have to call this. That's it, star. That's it. Now this function is called 100 times. You can save. You can save resources. Now you are satisfied. You know everything because this function work fine. आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है ये फंक्शन मेरा सही काम कर रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है, आप बिंदास उसको यूज करोगे. Okay, so I think now you guys are understand the concept of the function in great detail. So now I am moving to the technical part, how you can define this function. Okay, so functions are basically two types: the predefined function and user defined function. Predefined function, your main, okay, your clear screen, okay, your malloc, okay, your calloc. These are the predefined function. Predefined mean already available. Okay, your print function, printf function. These functions are available. Scanf function. These functions are already available into the C++. Okay, into the C++. Now I want to define my own function. User defined. They function are called user defined function. User defined function mean the functionality of the function is defined by user according to the requirement. Okay, according to the requirement. Now understand the user defined function. First I will show you one real-time example. Okay, then I will correlate that example to the technical thing with C and C++. Okay, understand this. So whenever you are saying a function, so keep this thing into a mind. Keep this point into a mind. My drawing is very bad. Again, my handwriting is again very bad, but you just understand it. Okay. So, okay, my drawing is very bad. So kindly ignore my drawing. Okay, can you tell me what is this? Okay. Are you able to recognize it? What is this? Are you able to recognize it? What is this? Anyone, please? Sir, jug. Okay, someone else? Sir, jug. It have power supply. This one is the power. Sir, kettle. Yes. Sir, kettle. Okay. It's kettle. Okay. Yes. Okay. Okay. That's great. Okay. So this one is electric kettle. Okay, electric kettle. So sometime people are very confused in functions. So after listen this example, you guys will never confuse about the functions. So one basic thing, whenever you feel that you are confusing with function, keep this example into your mind: electric kettle and glass. That's it. That's it. You will never confuse with the concept of the function. Okay, so what is electric kettle? If I say electric kettle, immediately picture came inside your mind: boiling. Immediately. Am I right or wrong?
If I'm saying electric kettle, what first term came inside your mind? Anji, please. What first thing immediately came inside your mind? So The tea. boiling. Boiling. Obvious, boiling. Sir The tea. is discussing about, okay, good. Please mute yourself. Sir is going to discuss about boiling. Why? If I write over here, okay, if I'm saying you, if I'm not showing you the picture, okay, if I'm not showing you the picture, let's suppose I'm not showing you the picture, I'm writing on the screen XYZ. You guys confused. You guys confused. Sir, written XYZ, but we don't know what exactly XYZ. Okay. If I write over here electric kettle, immediately inside your mind, the term came boiling. Just understand my words. If I write over here XYZ and I am thinking about boiling, but I'm writing over here XYZ, that's mean I'm not able to communicate properly. You guys will misunderstand. Sir is writing XYZ, but we don't know what exactly XYZ. But according to my context that I am saying, I'm assuming that you know XYZ, that is the boiling, because that is my own name. I don't like to pronounce electric kettle. I like to pronounce XYZ. But normally the name of that concept is the electric kettle. If I go to the shop and say, okay, give me XYZ, the shopkeeper will be confused. What sir is asking. If I say him, okay, give me the electric kettle, immediately that person will show me the different variety of the electric kettles. So why I'm focused on this? The first fundamental to understand your functions, okay, whenever you're supposed to design the function, the first fundamental is you are supposed to define the relevant name to that function. Okay, if you are performing calculation, so your function name should be relevant to the calculation. Let's suppose you are making a calculator and you assign your own name to that function, you will get confused after some time. So this one is the very fundamental rule. Whenever you're developing a software into the industry, the people give you the SRS document. That SRS document mean they give you a documentation where you are supposed to take the variable names according to them. It doesn't mean that your name is something and you are saying, okay, this is Bhavuk 1, Bhavuk 2, Bhavuk 10, Bhavuk 20, Simran 1, Simran 2, Simran 20. No, it is not like that. You are not supposed to give your own names. This is the one of the basic fundamental into the software industry. When you are designing a software, they provide you the documentation. According to that documentation, or you decide the documentation, according to that documentation, you are supposed to develop the software and you are supposed to assign the name to the function, to the variables. So this is the one of the basic fundamental. Okay, so what we understand first, the function name should be relevant. The function name should be relevant to your problem statement. Okay, the function name should be relevant to your problem statement. This is the one of the basic fundamental in the context of the function. Please mute. Someone is unmuted. Please mute. Okay. Please mute. Please mute. Please mute. Please mute. Okay. Thank you. So the first fundamental, we understand it. The function name should be relevant to your problem statement. Okay. Now you guys are clear. So it's mean that whenever you're performing a calculations, okay, so let's suppose arithmetic calculation, immediately you will assign a name calculator. Don't give name Simran 1. Okay. Don't give name Bhavuk 1. Okay. Don't give name Viru 1, something like this. No. It is not good way, but yes, it will work fine. But try to give the relevant name to your problem statement. Okay. So this one is the basic context of the function. Now back to this point. So this one is electric kettle. So why I'm saying this is relevant to your technical function? Okay. So sometimes we guys are confused with the parameter list. Okay. So understand very carefully. So this one is the functional unit. Okay. This one is a functional unit. And whatever that you are entering over here. So making a tea, normally what we make a tea inside this electric kettle.
So here you are adding water, okay, sugar, okay, and tea, okay, and milk. So what are these? These are the parameters that you are supplying externally, because this function doesn't have water, this function doesn't have sugar, this function don't have tea, this function don't have milk. These parameters, these things that you are providing externally, after providing these things, because the property of this electric kettle, it take 4 parameter, okay, if it take 4 parameter, the water, sugar, tea, and milk. You provided these parameter externally. Now these parameter inside this functional unit and processed according to your logic, and processed according to your logic, whatever your logic is. If I talk specifically this electric kettle, whatever thing that you providing it, it is try to boiling them, because this is the functional unit for this function, this electric kettle function. Okay, so when these things will be executed, the question is when these things will be executed, when you will supply power, okay, when you will give the power supply. So at that time it will start processing. So when you call this electric kettle, when you call this electric kettle, it start boiling, it start processing. After processing, understand this point, after processing, it is gonna to return you something, whatever you entered over here, after executing, it is gonna to return you. And this one is the important one. So let's suppose the guests are waiting. What you will do? You will process your, the material, whatever the material you enter into the electric kettle, it will process. After processed, you will take the return type of this function, okay, this return type of this function, and that return type is a t, okay, is a t, and you will put this tea into a glass, and after that you will serve. So keep this point into mind. So if I correlate all these things, not correlate, if I name all these things, so these are the parameters. Whatever parameters that you are supposed to give to your function, they will be processed into the functional unit. If it is a user defined function, then this logic is your own logic, what you want to do with these parameters. And when this logic will be executed, when you call it, and after executing, it is gonna to return you something, and that return type you are supposed to take according to this value, what it is gonna to be returned. Let's suppose if you give water and Maggie at that time, what value is it is returning? You are supposed to capture that value into plate. Hostel people can get better understand of this electric kettle. So now earlier I am giving all these parameters, but this time I am giving water and Maggie. So this concept is called electric kettle overloading. The name of the function is same, but the parameter list is different. So this concept is called function overloading. So this one is the return type of a function. What the function is gonna to be returned, that you are supposed to return that value according to that value what it is returning. If it is returning liquid, here the holder, okay, the variable should be glass. If the solid item is returning, then the variable should be plate. And this one is the processing unit, your logic that you want to implement. These are the parameter list. Whatever the parameter list that you are going to be give, that will be executed over here. And this one is a function call.
So this entire thing is your function that we do into our real daily life, into the real life. Now, if I want to implement same thing into C, C++, the first thing is that you must have function name, the parameter list. Here the parameters are water, sugar, but inside C, C++, no water, no sugar. Here the variables, and the variable must have some data type, integer, float, whatever. Here the return type, what the function is gonna to return, and that is hold. And here the return type is liquid, that's why I used glass. If the return type is integer, I am supposed to take over here the integer variable. If the return type is float, I am supposed to take the float variable over here. If the character, then I am supposed to take the character variable over here. So this one is the function. Now I think whenever you may confuse in the concept of functions, immediately try this into your mind. That is the electric kettle. Okay, that is the electric kettle. Now I think clear for everyone. I think the basic terminology is clear to everyone or not. If not, please let me know. I will explain one more. Anji, please explain the point. Are you clear about it? Anji, please just raise your hand if the basic terminology is clear to everyone so I can move further. Okay, good. So now I am moving to the syntax part. What exactly the syntax for the same? Okay, so here let's suppose a return type that you are supposed to define. It can be integer, it can be float, it can be double, whatever. Function name. Okay, parameter list. Okay, this one is a parameter list. This one is the body. Okay, body of function. Okay, so these are the syntax for a function. Okay, syntax over a function. Here the return type, what the function is gonna to be returned. Here the name of the function. Okay, these are the parameter, that what parameter you are gonna to be supply, and this one is the body of a function. Okay, the body of a function, what the function is supposed to do. So now understand this concept. I am making a technical example to add two values. That's it. Very simple program that I am supposed to be make right now. Int add. Okay, int add. Here int x, int y. Okay, int z. Okay, so this one is the name of the function. Add. These are the parameter list that my function is taking two parameters, and after executing, it is going to return integer value. So here inside this function, the one value, that is the z. So z is equal to x plus y, and what I am doing, I am returning this z. That's it. That's it. This is the definition of a function. This is a definition of a function. So here my function is ready. Now I am supposed to call that function. So when I am calling this function, this is my main, int main. Okay, curly braces on. Int a is equal to 15. Int b is equal to, let's suppose, 30. Okay, so here this is a function call add a or b. So what is happening over here? And I am
C out of C. What is happening over here? So I called this function, okay, this one, the name of the function, and I am passing two values here, A and B. A contain 15, B contain 20. So this A goes here, this B goes here, okay. Now, whenever I use this function is activated and it take two parameters. But make sure whenever it take two parameters, you are supposed to supply these two parameters. Here, the another variable Z, okay. So Z, what it's doing, Z is equal to X plus Y, okay, X plus Y. So whatever inside X the 15, inside Y the 20, and it's returning this Z, okay. When it's return this Z, okay, after that value is copied, okay, the value is copied in C, whatever the value that is it is returning, that is copied into C, okay, and I am printing that value on screen, that is 35. So this one is the entire. So here if I name them, label them, so this one is the body, okay, your functional unit, whatever that you want to do with these two variables. This one is the name, this one is the return type, okay, these are the parameter list, okay. So these are the parameter list. I passed these two parameters because this function is supposed to take two parameters, okay, it's take two parameters and I implemented it. So here after implementation, whatever the value return, I copied that value over here, okay, I copied that value over here and I used it. That's it. This is a very basic terminology, basic fundamentals to understand the concept of the function, okay. So here my function is returning int. Let's suppose my function doesn't return anything, so it's mean it's a void, okay. Let's suppose this void add two parameters x and y, okay, int x and int y. Here I am executing it, simply I am printing it, C out of x plus y, that's it. So in main I am calling it int main, okay, int main. Here two values, I am calling this function add of 10 comma 20, okay, that's it. So now this function is called, here these two values are passed, here these two values are passed, and after that these two values are implemented. After implementation it show you on the screen, that is the 30, that's it. So whenever your function doesn't return anything, there is no need to this, okay, there is no need to this. The void is the keyword, okay, which you are supposed to use when the function doesn't return anything, okay. If the function doesn't return anything, that's mean you are not using this return keyword into your code. So at that time it is mandatory that you are supposed to use this void, otherwise you will get the error message, okay. So I think now the picture is clear to everyone regarding the function. Very simple concept, the logic is same, everything is same, but the thing is that you are supposed to implement this thing with the help of function. That's it. Now you are converting everything into the function. I think now the picture is clear to everyone or not. Just raise your hand if the picture is clear, because I'm immediately giving you assignment for the same. Okay, good. I got only 1-2 hands. What about others? Okay, Simran Preet Kaur. Okay, now others. What about others? Okay, so good. So Jashan also, Babuk also. Okay, good. So please, assignment for right now, the time is 11:02. I will come back to you guys at 11:05. So what you are supposed to do, you are supposed to make a function to print this star. That's it. That's it. Very simple logic. Earlier we done it n number of time. Okay, n number of time, that you are supposed to print this star pattern in the form of function. Okay, in the form of function. That's it. Now you are supposed to convert this into a function. Then I will show you another program with the help of this function. Please do fast. Because function is very important. I will come back to you at 11:06. Okay. So this one is assignment for you.
बस हाँ जी हो गया। हाँ जी प्लीज रेज योर हैंड जिसका हो गया। हाँ जी प्लीज रेज योर हैंड्स जिनका हो गया, प्लीज रेज योर हैंड। Okay, Hina done. What about others? I am asked randomly. Okay. So, okay. Silika. हाँ जी सिलिका जी अनम्यूट योर सेल्फ। आप कल उस पे भी नहीं आए, इंटरव्यू पे भी नहीं आए कल। हाँ जी सिलिका जी। सिलिका। ओके सिलिका इज नॉट देयर। सिमरनप्रीत कौर। हाँ जी सिमरन जी। हाँ जी सिमरन। ओके ऑन होल्ड। ओके सो अर्शदीप कौर। अर्शदीप जी अनम्यूट योर सेल्फ। हरप्रीत सिंह। जगदीप सिंह।
नरेंद्र, चलो ओके, मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे होगा। थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, सेव एज, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। सी में बनाए या सीपीपी में? सीपीपी में कर लेते हैं। ओके, सो ठीक है जी, मैं फंक्शन बना रहा हूं स्टार वाला। ओके, द फंक्शन नेम इज डेफ ऑफ स्टार, ओ सॉरी, मैंने सी प्लस प्लस में लिख दिया, उसमें पाइथन में लिख दिया, तो आपको सी में करना है ना। वाइड ऑफ स्टार, so here I am taking int n, okay, the number of star pattern that I want to generate. So here the definition for int I is equal to 0, I less than n, I plus plus, okay, and then I am copying it, very simple, the same logic that we are discuss n number of time. So here j is less than I, and j plus plus, very simple, C out of this star, okay, and this and this. So this one is my function and my function name is star. I am simply calling this function over here, star of, let's suppose 5. Okay, so control S, cmd g plus plus function dot cpp. Okay, so just wait, I'm getting error. Okay, so syntactical mistake is there, I forgot to insert semicolons. So now again I am executing. Now hope this time I won't get any statistical error. Okay, so this one, why so? Because I forgot to C out of handle. Okay, so now you can understand the concept of function. Okay, so now observe this scenario. The first time I supply 5. Now you can see the beauty of the function. Here this time I am inserting 15. So this time this would be implemented for 15 stars. Otherwise, what you are supposed to do, you are supposed to write a code. Okay, if you don't want to implement function, then what you will do? First time you are supposed to, okay, first time you are supposed to do this. Another time, okay, you are supposed to do this. Let's suppose here the first time you implement the n value, okay, n value 5, okay, n value 5, and then you implement the n value 15. So this one is the way if you don't want to use function, but I know the concept of function. What I did, I made a function and now I am asking from a user, okay, I am asking from user, okay, I am asking from user cin of n. Okay, so according to user, whatever that he wants, that can be printed. Okay, that can be printed. That's it. Now you can observe this scenario. Very things become very easy. Okay, let's suppose here I am ending 15. So this time 15 star implemented. Here I implemented 10. So this time 10 star. Okay, here I am implement 5, this time 5. Here I implemented, let's suppose 6, this time 6. So this one, the function is same. You can check it out. I'm just passing the different parameter value. Okay,
So this concept is called your function. Now I think the picture is very clear to everyone. If you have any doubt, please ask me. Okay. Anyone having any doubt, please ask me before proceed further. Good. Okay. Another assignment. The time is 11:14. I will come back to you at 11:20. You are supposed to make a program for Armstrong numbers. Okay. You are supposed to make a function to check whether the given number is Armstrong or not. Armstrong. We already implemented that code n number of times. Okay. So your assignment is 11:15. I will come back to 11:20 and you are supposed to make a program whether the given number is Armstrong or not. Okay. Function with the help of function. Okay. Just try it. आज आज भी नहीं गए खेलने। कल गए थे। कल गए थे। आज ये सोच, ये आदर्श उनके लिखा था अपनी भावी पीढ़ियों को सीना तान कर जीने की प्रेरणा मिले। क्लास आई नहीं तेरी आओ फिर क्या करी जाना। हाँ जी हो गया। हाँ जी प्लीज। अभी तो पड़ा है टाइम है ना 2 मिनट पड़े हैं। ओके जस्ट टेक योर टाइम। अगर किसी का हो गया तो वो अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बता सकता है। अगर किसी का हो गया तो वो अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बता सकता है। जिनको मैंने कल बोला था उनका मेरे पास मैसेज नहीं आया, उनका रिज्यूमे नहीं आया मेरे पास।
पवन को बोला था, पूजा को बोला था, और एक और किसी को बोला था, श्रेया को आई सपोज। हाँ जी पवन। हाँ जी पवन। ओके श्रेया बैठे हो? चलो एनीवेज, सो आई होप कि हो गया होगा। प्लीज रेज योर हैंड जिनका हो गया, जस्ट रेज योर हैंड। फंक्शन, एम आई ऑडिबल? हाँ जी सिमरन, दिखाओ जरा। हाँ जी आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपकी वॉइस नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। लॉट ऑफ डिस्टरबेंस। आप एक काम करो, अपनी ये फोटो खींच करके कोड की इसमें डालो चैट में। ठीक है जी, पिक क्लिक करके चैट में डालो। आपकी वॉइस नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। म्यूट कर लो। हाँ जी भविष्य, भविष्य वर्मा, अनम्यूट। शालू, अनम्यूट एंड शो। रीना कौर, कमाल है यार, अनम्यूट तो कर लिया करो, एक बार बोल तो दिया करो, हाँ ना तो जवाब दे दो। अनमोल, अनमोल, अनमोल। चलो, या तो मैं ऑडिबल नहीं हूं या आप अनम्यूट नहीं होना चाहते। चॉइस इज अगेन योर, डोंट वरी। चलो मैं आपको बता रहा हूं अगला जो इसका जो जिन्होंने नहीं किया उनको एक बार मैं कोड दिखा रहा हूं, सो दैट दे गाइस कैन अंडरस्टैंड द कोड। कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करने के लिए अपने पास जो कोड है, क्योंकि इसके बाद फिर मैं टफ कंसेप्ट पे आ रहा हूं, पॉइंटर को फंक्शन के साथ अटैच करने वाला हूं। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर बाद में आप लोग बोलोगे कि हमें वो कंसेप्ट समझ नहीं आया, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिर। ओके, सो इंट चेक आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है जी, ये मेरा फंक्शन है जो इसके अंदर नंबर लेगा, वट एवर नंबर डेट यू आर गोइंग टू बी, यू आर सपोज टू बी पास। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, इंट ओरिजिनल नंबर, ठीक है जी, ON ले रहा हूं ओरिजिनल नंबर, रिमाइंडर के लिए R ले रहा हूं, ओके, रिजल्ट के लिए RS ले रहा हूं, ओके, इसकी वैल्यू 0 असाइन कर रहा हूं, और नंबर को मैं एक वेरिएबल और ले रहा हूं नंबर सम, और एक ले रहा हूं फ्लैग। तो ये मैं 4 वेरिएबल ले रहा हूं, ओरिजिनल नंबर, ओके, रिमाइंडर, रिजल्ट, नंबर इज इक्वल टू 0 एंड फ्लैग। ये एक्स्ट्रा है, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको यूज करेंगे। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, ओरिजिनल नंबर के अंदर ये वाला नंबर डाल रहा हूं, ठीक है जी। ये नंबर कहां से आएगा, ये नंबर जो आप पास करोगे चेक करने के लिए, ठीक है ना, जब फंक्शन कॉल होगी तो जो भी नंबर आप पास करोगे वो इसमें आएगा। उसको मैं टेम्परेरीली स्टोर कर रहा हूं, ओके, मैं उसको टेम्परेरीली स्टोर कर रहा हूं। अब मुझे लूप चलाना है, व्हाइल ओरिजिनल नंबर नॉट इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, आपको जो अच्छा लगे वो चला दो। वेरी सिंपल लॉजिक। अब लॉजिक को आई डोंट थिंक सो कि मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। रिमाइंडर के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, ओरिजिनल नंबर मॉड्यूलेशन ऑफ 10, ठीक है जी, और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है इज इक्वल टू, है ना, रिजल्ट, ये RES है, ठीक है, रिजल्ट प्लस पावर, ओके, तो पावर के लिए आपको ऊपर math.h लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, पावर ऑफ योर रिमाइंडर, ठीक है जी, एंड द अनदर थिंग इज दैट जो भी आपका नंबर है, ठीक है ना, तो यहां पे पावर कितनी जाएगी,
तो पावर अपनी चली जाएगी, लेट्स सपोज 3 को कर रहे हैं तो 3 आ जाएगी, है ना, पावर 3। तो उसके बाद यहाँ पे एक और काम कर सकते हो, इसको प्रॉपर बनाना है तो वो आप कर सकते हो कि n की वैल्यू को भी कैलकुलेट करो, जो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था 4 वाला, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। तो उसके बाद मेरा जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है जी, दैट इज दिस वन, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब ये काम हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इफ रिजल्ट डबल इक्वल्स टू नंबर, ओके, जो मैंने टेम्परेरी स्टोर किया था, तो यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर करो, 1 सेकेंड, सॉरी, ओ एन इज इक्वल टू नंबर, ओके, सो नो नीड। तो रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर, ठीक है ना, अगर तो ये नंबर के बराबर हो जाता है मेरा जो रिजल्ट है जो मैंने कैलकुलेट किया है, तो मुझे फ्लैग की वैल्यू को कितना सेट करना है, तो फ्लैग की वैल्यू 1 है, एल्स फ्लैग की वैल्यू 0 ही है, ठीक है ना। तो अब बाद में मैं क्या रिटर्न कर रहा हूं, रिटर्न ऑफ फ्लैग, दैट्स इट। तो ये मैं लॉजिक को थोड़ा जल्दी कवर कर दिया क्योंकि ये लॉजिक हमने किया हुआ है, तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हमने सिर्फ क्या किया, हमने उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस वन इज द एंटायर लॉजिक ग्रुप इनटू अ फंक्शन एंड दैट फंक्शन नेम इज चेक आर्मस्ट्रांग। तो ये मेरा फंक्शन बन गया। अब उधर से जो मेरे पास रिटर्न हो रहा है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है। इंटीजर क्या रिटर्न हो रहा है, 0 और 1, ओके, 0 और 1। अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो नंबर है वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। अगर 1 आ रहा है तो मेरा जो नंबर है वो आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो अब मैं मेन के अंदर जा रहा हूं, इंट मेन, ठीक है जी। अब यहां पे जो मैंने फंक्शन कॉल किया, तो यहां पे मैंने ले लिया आर, ओके, आर इज इक्वल टू चेक आर्मस्ट्रांग, ठीक है, ये फंक्शन का नाम है यही वाला। अब इसके अंदर जो मैंने पास किया 153 पास किया, ठीक है जी। अब जब ये फंक्शन कॉल किया तो 153 कहां चला गया, 153 यहां पे आ गया। ये पूरी प्रोसेसिंग होने के बाद इसने मुझे अपना फाइनल रिजल्ट रिटर्न किया 0 या 1, ठीक है। अब इस केस में हमें 1 रिटर्न होगा, तो आर के अंदर जितनी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी। जब आर के अंदर 1 आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर आर्मस्ट्रांग है। अब लेकिन मुझे नहीं पता, अब मुझे चेक करना है, मुझे एक लूप कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ आर वैल्यू डबल इक्वल्स टू 1 देन आई एम प्रिंटिंग सी आउट आर्मस्ट्रांग, ठीक है जी। उस केस में तो आर्मस्ट्रांग है, लेकिन अगर 1 नहीं आती तो ऑब्वियस है 0 आएगी। अगर 0 आती है तो सी आउट कर दो नॉट आर्मस्ट्रांग, दैट्स इट। तो ये फंडा है जी, ये फंडा है। सिर्फ मेरा जो मेन मकसद था आपको इसको प्रोग्राम को कन्वर्ट करने का था, मैं लॉजिक के ऊपर नहीं बता रहा क्योंकि लॉजिक हमने काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, लॉजिक हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है दिस वन, ओके, दिस वन इज द लॉजिक फॉर द सेम, ठीक है। लेकिन मैंने उसको क्या किया, जस्ट कन्वर्टेड इनटू ए फंक्शन, तो वो लॉजिक सारा उठा के फंक्शन में रख दिया और एक रिटर्न करवा दिया फ्लैग। फ्लैग की वैल्यू 1 रिटर्न कब होगी, जब वो आर्मस्ट्रांग है। फ्लैग की वैल्यू 0 रिटर्न कब होगी, जब वो आर्मस्ट्रांग नहीं है। यानी कि अगर मैं इसको नटशेल में देखूं तो मैंने क्या किया, मैंने एक बक्सा बना लिया। अब वो बक्सा मुझे, अब उसमें मैं एक वैल्यू दे रहा हूं, और वो वैल्यू प्रोसेस होके, ठीक है ना, वो वैल्यू प्रोसेस होके मुझे 1 और 0 रिटर्न कर रही है। अगर तो वो 0 रिटर्न कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर पास है वो आर्मस्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो अगर 1 रिटर्न कर रही है तो जो नंबर पास है वो आर्मस्ट्रांग है। इस बक्से में आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो वो एक्सटर्नली आप वैल्यू डाल रहे हो, ठीक है जी। तो दिस वन इज द नटशेल। मैं लॉजिक के ऊपर फिर आपको बोल रहा हूं कि मैं लॉजिक के ऊपर नहीं गया, मैंने सीधी आपको इंप्लीमेंटेशन बताई है कि इस फंक्शन को आप कैसे कन्वर्ट, ये लॉजिक है सारा उसका, ठीक है। तो ये आपको रखना है इस बक्से के अंदर, ये बक्सा है, इस बक्से का नाम क्या है, चेक आर्मस्ट्रांग। और ये क्या ले रहा है, एक नंबर ले रहा है और अपनी प्रोसेसिंग करके आपकी जो भी प्रोसेसिंग यूनिट है और आपको रिटर्न कर रहा है, और ये कैप्चर है। तो ये जो भी रिटर्न टाइप आएगी वो ये पकड़ेगा, पकड़ने के बाद आप उसको चेक कर रहे हो कि उसकी वैल्यू 1 है कि 0 है। अगर तो 1 आती है तो ठीक है जी, आपको सिंपली प्रिंट करवाना है कि आर्मस्ट्रांग है। अगर 0 आती है तो आपको सिंपली प्रिंट करवाना है कि आर्मस्ट्रांग नहीं है। ओके, सो दिस वन इज द एंटायर थिंग दैट यू आर सपोज टू इंप्लीमेंट। ओके, सो अब मैं जा रहा हूं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है जी। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, वेरी सिंपल। अब ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि किसी चीज को ओवरलोड करना। तो हाउ यू कैन डू ओवरलोडिंग। अब टेक्निकली आप कैसे ओवरलोड कर सकते हो, द नेम ऑफ फंक्शन इज सेम,
नेम ऑफ फंक्शन सेम बट पैरामीटर लिस्ट इज डिफरेंट, दैट्स इट। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। छोटी सी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, आपको फटक से समझ आ जाएगा। तो ये मेरा एक फंक्शन है इंट सम, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है, इंट ए इंट बी, ठीक है ना, ये दो चीजें हैं। अब दो चीजें हैं इसमें, दो दो पैरामीटर ले रहा है और अपना काम करके क्या रिटर्न कर रहा है, अपना काम करके a प्लस बी रिटर्न कर रहा है। वेरी गुड, ठीक है सर। ये हो गया एक फंक्शन जो दो पैरामीटर ले रहा है। अब मैं एक और फंक्शन बना रहा हूं जो क्या कर रहा है, जो फ्लोट ले रहा है, फ्लोट सम। ओके, इसमें दोनों पैरामीटर आ रहे हैं वो फ्लोट टाइप के आ रहे हैं। यस, इसमें दोनों पैरामीटर आ रहे हैं वो फ्लोट टाइप के आ रहे हैं, तो ये रिटर्न कर रहा है a प्लस बी, ठीक है जी। अब मैं एक और फंक्शन बना रहा हूं, उसका नाम भी सम ही है, ठीक है ना, उसका नाम भी सम ही है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, वो इंट रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना, इंट रिटर्न कर रहा है। अब उसमें क्या है, इंट ए इंट बी इंट सी, ये तीन ले रहा है और तीनों को सम करके रिटर्न कर रहा है, रिटर्न a प्लस बी प्लस सी, दैट्स इट। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होगा, जब मैं दो पैरामीटर पास करूंगा इंटीजर के, तो ये वाला फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। जब मैं पैरामीटर पास करूंगा दो फ्लोट वाले तो ये वाला फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। जब मैं पास करूंगा तीन पैरामीटर, ठीक है ना, इंट वाले, तो ये वाला फंक्शन मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस केस में है क्या, इस केस में ये है, अगर आप ध्यान से देखो, द फंक्शन नेम इज सेम, द फंक्शन नेम इज सेम बट द आर्गुमेंट लिस्ट इज डिफरेंट। द फंक्शन नेम इज सेम दैट आर्गुमेंट लिस्ट इज डिफरेंस। कॉलिंग के लिए बड़ा सिंपल फंडा है, कुछ नहीं करना। इंट मेन में आप आए, ठीक है जी, जब आप मेन में आते हो तो आपको क्या करना है, सम। अगर आप 10.8 कर रहे हो, 11.2 कर रहे हो, तो कौन सा फंक्शन ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, ये वाला अपडेट होगा, ठीक है ना। आप x में वैल्यू पकड़ लो और उसको सी आउट करवा दो x, ठीक है। अब अगर जब आप यहीं पे कर दो, ठीक है ना, x इज इक्वल टू सम, अगर मैं इस लाइन को चेंज करके ये कर दूं 1 2 3, तो अब कौन सा एक्टिवेट होगा, अब ये वाला एक्टिवेट होगा, ठीक है ना, अब ये वाला एक्टिवेट होगा। अब ये वाला एक्टिवेट होगा क्योंकि ये तीन पैरामीटर ले रहा है, ऑटोमेटिकली ये तीन पैरामीटर ले लेगा, ठीक है। अब अगर मैं करूं x इज इक्वल टू सम, ठीक है जी, 5 और 6, अब कौन सा एक्टिवेट होगा, अब ये वाला एक्टिवेट होगा, क्योंकि फंक्शन नेम इज सेम। अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द फंक्शन ओवरलोडिंग, वेरी सिंपल। फंक्शन नेम इज सेम बट द पैरामीटर लिस्ट इज डिफरेंस, तो हम इसको बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये कंसेप्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग का। अब अपने पास एक एडवांस कंसेप्ट भी आता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड फंक्शन टेम्पलेट, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता ये टर्बो में चलता है कि नहीं चलता, तो मैं C++11 पे ही प्रैक्टिस की हुई है मैक्सिमम, तो मैं उसी के बिहाफ पे बात कर रहा हूं। तो होपफुली ये फंक्शन टेम्पलेट जो टर्बो C++ है उसमें भी चलता है, आई होप, मुझे जहां तक श्योर हूं मैं, तो ये चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट है क्या, पहले उसको समझ लेते हैं। फंक्शन टेम्पलेट का मतलब क्या है, एक जेनेरिक फंक्शन बना देना, ठीक है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट में देखूं, अगर मैं सिर्फ ये दो को उठाऊं जो मैंने लास्ट में अभी डिस्कस किए थे, ठीक है। अब मैं अगर इन दो को उठाऊं, अगर इन दो को उठा के मैं ध्यान में देखूं, ध्यान से देखो आप, चेंज क्या हो रहा है, पैरामीटर लिस्ट नहीं चेंज हो रही। अगर इसको और इस दोनों को उठाएं, पैरामीटर लिस्ट नहीं चेंज हो रही, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ डेटा टाइप चेंज हो रहा है। सिर्फ आप देखो ध्यान से, तो सिर्फ डेटा टाइप चेंज हो रहा है, सिर्फ डेटा टाइप चेंज हो रहा है, पैरामीटर लिस्ट नहीं चेंज हो रही। तो कहता है इसको दो बार लिखने की जरूरत क्या आन पड़ी, समझ रहे हो बात को। कहता है इसको दो बार लिखने की जरूरत है क्योंकि सिग्नेचर सेम है, इसको सिग्नेचर बोलते हैं, सिग्नेचर सेम है, दोनों ही दो पैरामीटर ले रहे हैं, लेकिन दोनों जो पैरामीटर ले रहे हैं बस वो ये है कि वो फ्लोट टाइप का पैरामीटर ले रहे हैं, rather than writing these thing to two times I can use very more the beautiful concept and that concept is called function template. Later on हम उसको in depth करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो वो फंक्शन टेम्पलेट क्या है, अब उसको ध्यान से समझते हैं। कहता है अगर मुझे जेनेरिक फंक्शन बनाना हो, जेनेरिक फंक्शन, तो अब ये जेनेरिक बन जाएगा। जेनेरिक कैसे बन जाएगा कि नाम एक ही रहेगा, ठीक है, आपको उसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो कंसेप्ट यूज कर सकते हो वो फंक्शन टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं सिंपल सा एक फंक्शन बना रहा हूं, टेम्पलेट क्लास, ठीक है जी। टेम्पलेट को मैंने इंपोर्ट किया, टेम्पलेट क्लास टी, ठीक है, तो मैंने इसको इंपोर्ट किया।
अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूं ठीक है जी, टी, ओके टी, ठीक है जी, मैक्सिमम फाइंड आउट करेगा, ठीक है जी, टी ए, ओके, एंड टी बी। अब बताता हूं क्या है, और सिंपल सा मैं रिटर्न करवा रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, मैक्सिमम मैं इसको कंसाइज करने की कोशिश करूंगा, देन ए एल्स बी, ठीक है जी। अब मैंने आपको बोला, ठीक है, अब इसको मैं यही पोस्ट कर रहा हूं, मैं आपको एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूं। मैंने आपको बोला कि मुझे एक ऐसा फंक्शन बना के दो जो मैं दो वैल्यूज दूं और उसमें से बड़ी वैल्यू निकाल के दे दे। अब आपने बोला कि सर ठीक है, मैं ये लो, मैंने, अगर मैं नॉर्मल नॉर्मल सिनेरियो की बात करूं, ठीक है ना, नॉर्मल फंक्शंस की बात करूं, फंक्शन टेम्पलेट की बात नहीं कर रहा अभी, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं। तो मैंने एक बना के दे दिया, इंट ऑफ मैक्स, ठीक है जी, इंट ऑफ ए, इंट ऑफ बी, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं रिटर्न करवा रहा हूं यही लॉजिक लगा के सारा, ठीक है ना, सेम ये लॉजिक सारा सेम आएगा, ए ग्रेटर देन बी, ए और बी। चलो ये हो गया, ये आपने मुझे फंक्शन बना के दे दिया जो इंट के लिए काम करता है। मैंने आपको बोला यार इंट के लिए तो तूने बना दिया, बहुत ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि तू एक ऐसा फंक्शन बना दे जो फ्लोट के लिए भी काम करे। सर जी दिक्कत क्या है, कुछ भी नहीं है, ये लो फ्लोट मैक्स, है ना, फ्लोट ऑफ ए, फ्लोट ऑफ बी, सेम लॉजिक, ये वाला सेम लॉजिक मैंने यहां पे लिख दिया। अब ये काम करेगा, ये फ्लोट के लिए काम करेगा। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि यार एक काम कर, ये तो बिल्कुल ठीक है, अब मेरे पास डबल की दो वैल्यूज है, उसके लिए भी बना दे। सर जी दिक्कत क्या है, डबल ही तो करना है, तो डबल ही तो कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पे जहां पे मैंने फ्लोट लिखा था वहां पे मैंने डबल कर दिया और रिटर्न करवा रहा हूं सेम लॉजिक। बहुत अच्छी बात है यार, तू तो जेम्स बॉन्ड बन गया है ना, तू तो सारा कुछ आता है तुझे, तूने इंटीजर का भी बना दिया, तूने फ्लोट का भी बना दिया, तूने डबल का भी बना दिया। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका सिग्नेचर सेम है, इसका सिग्नेचर सेम है, लेकिन इसमें फर्क क्या आ रहा है, सिर्फ डेटा टाइप्स का फर्क आ रहा है। तो कहता है इसको 3 बार लिखने की बजाय क्या कोई ऐसा सोल्यूशन है कि मैं इसको एक बार में ही कर दूं? बिल्कुल कर सकते हो। सी प्लस प्लस कहती है ये लो उठा एक फीचर, उस फीचर का नाम है फंक्शन टेम्पलेट। ये फंक्शन टेम्पलेट नाम की क्लास को इंपोर्ट करने के बाद जहां जहां डेटा टाइप्स हैं, जहां जहां डेटा टाइप्स हैं, ठीक है ना, वहां वहां जो भी तू क्लास का टेम्पलेट क्लास का नाम रखा है टी, वहां वहां टी लिख दे, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। तो यहां पे देखो इंट में था, यहां पे मैंने टी कर दिया, यानी कि ये मेरी अपनी मर्जी की क्लास रिटर्न होगी। यहां पे क्या था, यहां पे भी टी था, ठीक है ना, यहां पे इंट था, यहां पे भी टी है, यहां पे भी इंट है, यहां पे भी टी है, ठीक है। अब ये एक जेनेरिक फंक्शन बन चुका है, अब ये इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी काम करेगा, लेकिन सर कैसे? ऐसे आपको क्या करना है, मेन के अंदर जाना है, ठीक है जी, मेन के अंदर जाना है। तो मेन के अंदर जब आप गए, आपने क्या लिखना है, सी आउट ऑफ, सिंपली सी आउट ऑफ, ठीक है ना, फंक्शन को कॉल किया मैक्स को, ठीक है जी, फंक्शन को कॉल किया मैक्स को, आपने पास किया 12 और 14, दैट्स इट। अब ये ऑटोमेटिकली समझ रहा है ओके दिस बिलोंग्स टू द इंटीजर फैमिली, ठीक है, यानी कि यहां पे जो वैल्यूज है वो इंटीजर हो जाएंगी, ठीक है। अब आपने करना है सी आउट ऑफ मैक्स ऑफ 12.4 13.6। अब ये ऑटोमेटिकली किसके लिए काम कर रहा है, अब ये फ्लोट के लिए काम कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अब आप डबल भी डालना चाहते हो तो डबल वैल्यू भी डाल दो, ठीक है ना, दो डबल वैल्यू डाल दो लंबी चौड़ी सी, तो ये ऑटोमेटिकली यहां पे जो काम होगा कहता वो डबल के लिए होगा। तो इस पूरे कंसेप्ट को हम बोलते हैं फंक्शन टेम्पलेट, लेटर और हम इसको इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप छोटा सा एक कंसेप्ट समझ लो कि अगर आपको जेनेरिक फंक्शन बनाना होता है, ठीक है ना, जेनेरिक फंक्शन बनाना होता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, फंक्शन टेम्पलेट का सहारा लेते हैं। तो दिस वन इज द वे फॉर फंक्शन टेम्पलेट। नाउ आई थिंक दिस लिटिल स्मॉल कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो लेटर ऑन हम इसके ऊपर पूरी डेप्थ करेंगे, इन डेप्थ करेंगे, जब हम एडवांस पार्ट में आएंगे इसके थोड़ा सा, तो हम इसको पूरा खोलेंगे, पूरा छेड़खानी करेंगे इसके साथ, ठीक है जी। ओके, सो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो, मैं आपको दिखाया नहीं है, आप इसका नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मैंने ये दिखाया नहीं, आप थोड़ा सा इसके ऊपर करोगे तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, rather than to writing 3 times the C++ give you the feature, that feature is called function template, and I hope this will be work on turbo C as well, उसमें भी अच्छे से काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ओके, सो
नेक्स्ट वन मोर टर्म, स्मॉल सी छोटी सी टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। डिफॉल्ट का मतलब ऐसा है कि भैया डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट है, आप उसकी वैल्यू दोगे तो वो चेंज हो जाएगी, आप उसकी वैल्यू नहीं दोगे तो वो चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। आप उसकी वैल्यू दोगे तो वो चेंज हो जाएगी, आप उसकी वैल्यू नहीं दोगे तो वो नहीं चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन बना रहा हूं इंट एड, ठीक है जी। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं इंट एक्स, इंट वाई, इंट जेड। तो ये जेड को मैं डिफॉल्ट कंसीडर कर रहा हूं, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, 0 दे दिया, ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट जेड की वैल्यू 0 है, लेकिन अगर आप चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएगी, अगर आप चेंज नहीं करोगे तो वो चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। तो रिटर्न, ओके, रिटर्न एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है जी। तो ये आप कर सकते हो। अब ये देखो, अब यहां पे मैंने क्या किया, इंट ऑफ सी ऑफ एड, ठीक है ना। अब एड में मैं क्या कर रहा हूं, 10 12 कर रहा हूं, 10 और 20 कर दिया, ठीक है। तो पहली वैल्यू थी, अब यहां पे जो इंप्लीमेंटेशन हो रही है वो क्या हो रही है, 10, यानी एक्स में 10 चला गया, वाई में 20 चला गया, ठीक है। जेड में ऑटोमेटिकली 0 है क्योंकि हमने चेंज नहीं किया, जेड में ऑटोमेटिकली 0 है, ठीक है, तो क्योंकि ये डिफॉल्ट पैरामीटर है। अब दूसरे केस में मैंने क्या किया, c इज इक्वल टू एड 10 20 30। अब ये 10 इसमें चला गया, 20 इसमें चला गया, अब 30 जो था कहता वो z को एलोकेट हो गया। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो रन टाइम पे चेंज हो जाती है, लेकिन आप चाहते हो कि आपने चेंज नहीं करनी, तो ये वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है कि यूजर पे वो चेंज करना चाहता है कि नहीं चाहता। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ओके, सो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने z की 0 सेट कर दी रन टाइम पे, लेकिन मैं उसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूं। अब मैंने रन टाइम पे उसकी जो वैल्यू बना दी वो 30 बना दी, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड है, और इस छोटे से कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, छोटे से कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है जी। तो ये आपकी बेसिक हो चुका है, ठीक है जी। ये आपका पॉइंटर्स का बेसिक, सॉरी फंक्शंस का बेसिक हो चुका है। कल मैं इसको मूव करूंगा, ठीक है जी, कल मैं इसको मूव करूंगा पॉइंटर के साथ, कैसे आपने एरे को रिटर्न करवाना है, ठीक है, कैसे एडवांस पार्ट पे आएंगे, कैसे फंक्शन में आप एरे डलवा सकते हो, ठीक है, फंक्शन पॉइंटर क्या है, उसका रियल टाइम यूसेज क्या है, ठीक है। वी विल डिस्कस दैट थिंग इन टुमारो इन ग्रेट डिटेल। तो आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं अभी इस फंक्शन टॉपिक को यहीं पे पॉज कर रहा हूं, स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है, इन द मीन बाइल, ठीक है, बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन। तो अगर आपको किसी को कोई डाउट है, ठीक है जी, अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, आई एम गेटिंग अ फोन कॉल। हेलो, हाँ जी मैडम, कैसे हो? मैं ठीक ठाक मैडम, आप बताइए। मैं बढ़िया सर। और सर मैंने आपसे एक फेवर चाहिए थी। आप बोलो कोई बोलो। जानते हैं जो M3 पढ़ाता है? M3, हाँ हाँ, रंजीत सर है। वो एक्चुअली ना मेरे यहाँ पे किसी में नॉन में ना किसी को अभी जैसे उसका सप्ली का पेपर है 23rd को, तो वो कहते मुझे हेल्प चाहिए, उसने बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ है अच्छा। वीजा के लिए। तो उसको ये है कि वो कहते कि मैं जो होगा मैं प्रोवाइड कर दूंगा जितने वो मांगते हैं पैसे पेपर निकलवाने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल घर से ही चलेगा पेपर M3 का। ओके ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम करो, मैं आपको नंबर सेंड करूं, रंजीत सर है अपने मैथ वाले। अच्छा, वो CGC में ही है? क्या बोले? मैं CGC में ही है? हाँ हाँ, सीजीसी में यार, रंजीत सर मेरे साथ आपने देखे ही होंगे, मेरे साथ भी होते हैं कई बार, सरदार से हैं। अच्छा, मैं नोटिस नहीं, मेरा नाम ले देना, मेरा नाम ले देना, मैं आपको नंबर भेजता हूँ अभी ना। ठीक है ठीक है। हाँ जी, और ठीक वो ठाक हेल्प मैडम? कर देंगे आपको? हाँ हाँ कर देंगे, वो आप एक बार डिस्कस कर लो जो भी होगा केस, है ना। हाँ, तो जो भी वो बताते हैं कि हाँ ये जितने भी वो चार्ज करते हैं। हाँ कोई नहीं, वो कर देंगे, मेरे को लगता है कर देंगे। आप मेरा नाम ले देना ना एक बार, फिर कर ही देंगे। वो फिर वो क्या मैंने बोला यार वो ना एक्चुअली कजन ही है, हम्म। मेरा कजन नहीं आता, तो बहुत हेल्पफुल लड़का, बस उसका M3 का ही नहीं कोई प्रॉब्लम बात है। नहीं, मैं आपको अभी अभी 5 मिनट में ना, अभी 5 मिनट में आपको व्हाट्सएप करता हूँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, चलो, थैंक यू ओके, सो मच। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं करवा रहा फिर, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा। कल मैं इसका एडवांस चीजें करवाऊंगा, फंक्शन और पॉइंटर्स को कैसे आपने कंबाइन करना है, कैसे आप कर सकते हो, ठीक है।
हाँ जी, हाँ जी प्लीज। हाँ जी, वो कहाँ है, पवन कहाँ है, और श्रेया कहाँ है, और पूजा कहाँ है? पूजा का तो मैसेज आ गया ना, उसका नेटवर्क इशू है। हाँ जी, पवन 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 है। आप लोग अगर चाहते हो, ठीक है ना, तो मुझे एक बार रिज्यूमे भेज देना। मेरी बात हो गई थी कंपनी के साथ, तो आपकी इंटरव्यू फ्लटर के ऊपर और उसकी मेरे ख्याल से उसकी पूजा की तो डिजाइनिंग के ऊपर। ठीक है, मेरी कल मैंने बात कर ली थी, तो वो कहता है कि मुझे दे दो, मुझे रिक्वायर्ड है, अगर बंदा सही है तो मैं इमीडिएट उसको ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। श्योर सर। हाँ जी, कौन है? हाँ जी, कौन था? आवाज आई चलेगी एकदम से। ये पारुल पारुल दुग्गल कौन है? ये भी फर्स्ट टाइम मैंने देखा है आपको भी। कौन है जी ये पारुल दुग्गल? ये आप ही की क्लास की है? सर 5th सेम में। अच्छा, ये फिफ्थ है। अच्छा, हाँ जी, ये कौन को कोई क्वेश्चन करने जा रहा था, वो एकदम से अनम्यूट हो गया। सर पूजा थी सर, उसका नेट नहीं चल रहा। अच्छा, उसका नेट, उसको उसको कोई बात नहीं, उसको बोलना कि मेरे एक बार शेयर कर दे अगर करना है तो, ठीक है ना, क्योंकि मेरी बात हो रखी है, वो इंटरव्यू ले लेगा आपकी। और प्रोबेबली देखो, स्टार्टिंग में तो सैलरी थोड़ी सी कम ही होगी, लेकिन ये है कि आपको 6 महीने बाद हाइक मिल जाएगा, और सीखने का अच्छा मौका है। आपको प्योरली स्क्रैच से आपने काम करना है, ठीक है, टीम के साथ एसोसिएट होके। तो इंटरव्यू लेगा आपकी, पहले गूगल पे ले लेगा एक बार, फिर आपको अपने ऑफिस, एक बार ऑफिस में जाना पड़ेगा, मोहाली ऑफिस है, ठीक है ना। तो अगर नई पॉसिबिलिटी बनती जाने की, तो वो भी मैं बोल के उसको सारी इंटरव्यू आपकी स्काइप के ऊपर या गूगल मीट के ऊपर कंडक्ट करवा दूंगा। और प्रोबेबली इंटरव्यू में मैं भी बैठूं, ठीक है, लेकिन वो बोल रहा था कि तुम भी बैठ जाना, लेकिन अब देखते हैं। तो मैंने उसको बोला था कि तू अपने डेवलपर से एक बार इंटरव्यू ले लेना, और पहले तुम ले लेना, फिर अपने डेवलपर से, जैसे भी आपको ठीक लगे। अगर वो उसको सही लगा बंदा, तो वो इमीडिएट आपको ज्वाइन करवा देगा। तो अपनी जिन्होंने फ्लटर किया हुआ है, ठीक है, वो मुझे अपना रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, पारुल दुग्गर सर, ओके, कोई बात नहीं पारुल, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम देखा था ना, आपको फर्स्ट टाइम आपका नाम देखा है, तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। तो आपको अगर फ्लटर पे जिन्होंने प्रोजेक्ट कर रखा है, ठीक है, अगर आपका कोई सीनियर भी है जिसने फ्लटर में काम कर रखा है, ठीक है, जिसको आइडिया है बेसिक कि वो कैसे करेगा, एक आधी छोटी मोटी एप्लीकेशन भी बनाई है, तो डेफिनेटली वो उसको इमीडिएट ज्वाइन करवा देगा, क्योंकि उसको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। और जो अच्छी कंपनी है, राइजिंग कंपनी है, काफी प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, पतंजलि का प्रोडक्ट है उनके पास, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट हैं उनके पास। आप चाहे तो गूगल पे सर्च भी मार सकते हो, प्ले स्टोर पे चेज ऐप भी उनका ही प्रोडक्ट है, और उनका एक हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको ग्रो करने के लिए। और सबसे मजे की बात यह है कि सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में राइज बहुत जल्दी हो जाता है। आप स्टार्टिंग से एक प्रोडक्ट बना लेते हो ना, तो आने वाले 1 डेढ़ साल में आप बहुत जल्दी राइज कर जाते हो, क्योंकि सर्विस में इसमें क्या रहता है कि बना बनाया होता है, बने बनाए को आपको रिकवर करना है, यानी कि ठीक करना है। मान के चलो मैं प्रोडक्ट बना के कंपनी छोड़ के चला गया, अब मैं आपको हायर कर रहा हूं कि भैया जो भी एरर आती है आपने देखनी है। एक तो ये होती है सर्विस बेस्ड कंपनी, जस्ट लाइक अंडरस्टैंड यू कैन। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है कि मैंने आपको हायर किया, मेरा प्रोडक्ट बन रहा था, मैंने आपको प्रोडक्ट में डाला कि भैया तू अब ये पूरी टीम है, 3 महीने में आप पूरी टीम ये मेरा एक प्रोडक्ट बना करके मुझे देगी, ठीक है, वो होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि आप बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल पहले उसका आर्किटेक्चर डिजाइन करते हो, उसका डीएफडी डिजाइन करते हो, मतलब पूरा थोरोली स्टडी करते हो कि मेरा काम होगा कैसे, फिर आप उसको डेवलपमेंट पे आते हो। यानी कि आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, अब आप उसके सेम सिमिलर प्रोडक्ट लाइफ में चाहे 50 बना दो। अब फायदा क्या होता है, आपने मान के चलो एक प्रोडक्ट बना दिया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, आज आपने वो अपने कॉलेज में बेच दिया, अब कल को आप दूसरे कॉलेज में जाते हो, वो कॉलेज कहता है इसमें 2 चेंजेस करके मुझे दे दो, ठीक है, आपका आधा काम तो हुआ ही पड़ा है। आपने सिर्फ 2 चेंजेस की, आपने लोगो चेंज किए, और आपने 2 4 और उनकी रिक्वायरमेंट के चेंजेस किए, और बना के वो प्रोडक्ट वहां पे बेच दिया। फिर आप जाते हो तीसरे कॉलेज में, वो भी कहता है यार मुझे भी चाहिए, वो भी आपको दे सेम प्रोडक्ट, ठीक है ना, एक बार की मेहनत है। अब जो डेवलपर एक बार ये बना लेता है, तो कंपनी उसको छोड़ती नहीं है जल्दी देख करके, ठीक है।
अब कंपनी कहती है ठीक है यार भैया, तू पहले 15,000 ले रहा था, 10,000 ले रहा था, अब 20 ले ले, कोई दिक्कत नहीं, मुझे छोड़ के मत जा। फिर आप 6 महीने बाद फिर कहते हो यार 20 सर मुझे दूसरी कंपनी ऑफर दे रही है, वो मुझे 30 दे रही है। ठीक है भाई, तू मेरे साथ काम कर, 1 साल का बॉन्ड और साइन कर ले, ये ले पकड़ 30,000 रुपये ले ले। ठीक है, फिर आप 8-10 महीने बाद फिर कहते हो कि सर दूसरी कंपनी मुझे 40 दे रही है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, तू मेरे साथ रह, मैं तेरे को 35 दे देता हूँ, या तेरे को मैं 40 ही दे देता हूँ। तो इस तरह से राइज हो जाता है प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट में जब पैर फंस जाता है ना, तो बंदे को ये हो जाता है कंपनी को कि यार ये बंदा एक ऐसा बंदा है जिसने मेरा एक प्रोडक्ट बनाया था, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा ना तो जितने भी कंपनी चल रही है मुझे नया डेवलपर लेके आना पड़ेगा, फिर उसको सारा समझाना पड़ेगा, समझाने के बाद फिर वो ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आने का बहुत फायदा है। तो हमेशा कोशिश करो कि आप भी छोटी कंपनी में पैर फंसा लो स्टार्टिंग में, मैं तो यही कहता हूं, बड़ी कंपनी मत जाओ। बड़ी कंपनी में 3 साल लगाए और छोटी कंपनी में 1 साल लगाया। बड़ी कंपनी में क्या होता है, 3 साल में आपको ये तो ठीक है, चलो सैलरी तो ठीक होती है, मान के चलो 3.5 लाख का पैकेज हो गया आपका, 4 का हो गया, 5 का, लेकिन सीखने के लिए कुछ नहीं है। छोटी कंपनी में अगर आप काम कर लिया 1 साल, तो वहां सीखने के लिए बहुत कुछ है, फिर आप सीधा 1 लाख के जंप पे जा सकते हो अगर आप में कैपेबिलिटीज है। लेकिन बड़ी कंपनी में वो बॉन्ड साइन करवा लेते हैं, 3 साल का आपके साथ पैकेज करते हैं, और 3 साल में बॉन्ड साइन ये होता है कि हम आपको 15 लाख रुपए देंगे, ऐसा होता है। अगर जो आपको दिखाए जाते हैं ना पैकेजेस 15 लाख 20 लाख, ये इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेशर को पहले ही साल 20 लाख रुपया मिल जाएगा, नहीं। वो ये कंसाइनमेंट होती है कि भैया 3 साल तू मेरे साथ एसोसिएट रहेगा, 3 साल में जो तू मेरी तरफ से पैसा कमाएगा वो 15 लाख होगा। यानी कि अगर मैं एवरेज निकाल के देखूं तो 5 लाख पर मंथ। ये नई स्ट्रेटेजी आ गई है मार्केट में, अब बड़ी कंपनीज यही करती हैं। इसमें कॉलेजेस का भी फायदा है, अब कंपनी का भी फायदा है। कॉलेज का ये फायदा हुआ कि उसने दिखा दिया 20 लाख का पैकेज, ठीक है, लेकिन वो 20 लाख मिला कितने में, वो 3 साल में मिला, कंपनी का भी बेनिफिट हो गया। तो 3 जो पैसा 1 साल में देना था वो 3 में दे रहे हैं, ठीक है ना, ये बेनिफिट है। लेकिन जब आप छोटी कंपनी में मान के चलो आप 10,000 रुपये भी लगे हो, आपने काम सीख लिया, अब अगले साल आप अगर आप में इतना काम आपने सीख लिया, तो मान के चलो किसी बड़ी कंपनी को रिक्वायरमेंट है, आपने वहां पे रिज्यूम दिया और आप शॉर्ट लिस्ट हो गए और आप सिलेक्ट हो गए, तो वहां पे अगर आप 5 लाख रुपए मांगोगे ना तो वो 5 भी दे देगी, अगर 10 भी मांगोगे तो वो 10 भी दे देगी, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना कि हम छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही गाइड करता हूँ कि स्टार्ट विद स्मॉल कंपनी, क्योंकि अभी तो आपको पैसे का कोई कंसर्न है ही नहीं ना। अभी तो आपका पैसा आपके लिए कुछ भी नहीं मायने रखता। अभी तो आपके लिए जो मेन मायने रखता है वो ये रखता है कि आपको एक जॉब मिले और आपसे कंधों से वो फ्रेशर वाला जो धब्बा है वो हट जाए। अगर वो धब्बा हट गया ना, बस ये लगा के चलो कि कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी तो आप ये लगा के चलो कि अभी आप पैसे के पीछे मत भागना। अगर अभी आप पैसे के पीछे भागने लग गए तो आप अपना फ्यूचर खराब कर लोगे। हाँ, अगर हो जाती है तो मैं ऐसा नहीं कहता कि मत जाना, बड़ी कंपनी में जाओ, जिनकी बड़ी कंपनी में हो जाती है वो बड़ी में जाओ, जिनकी छोटी में हो जाती है वो छोटी में भी जाओ, लेकिन पैसे के पीछे मत भागो। अभी सिर्फ ये भागो कि आप सिर्फ सीखने के दौर में हो, हमें सीखना है। बस एक बार काम आ गया ना, तो 2 साल एक बार आपने काम कर लिया, मिनिमम 2 ईयर्स, तो लगा के चलो कि आने वाले 4 साल आपके बढ़िया है। फिर आप राइज ही करोगे, फिर पीछे नहीं जाओगे। अगर आप 10,000 से स्टार्ट कर रहे हो तो वापस 2 साल बाद 10,000 पे नहीं आओगे, 2 साल बाद आप 40 पे होंगे, 50 पे होंगे, ठीक है, लाख पे भी हो सकते हो अगर आप में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज आ गई। और थोड़ा सा आपका लक भी मैटर करता है, सारा कुछ ही हार्डवर्क नहीं है। मैंने पहले भी बोला है 70% हार्डवर्क, 20% लक और 10% भगवान का हाथ। अगर ये तीनों चीजें आपके साथ है तो ये लगा के चलो कि आप बहुत आगे भागोगे। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि 10% मेहनत, 70% भगवान का हाथ और बाकी बचा किस्मत, नहीं हो तब भी हो जाएगा। अगर भगवान का हाथ है तब भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप सारा कुछ किस्मत पे छोड़ के जाओगे कि 10% हार्डवर्क, 70% किस्मत और 10-20% भगवान का हाथ, तो भगवान भी बोलेगा नहीं यार मैं नहीं कर सकता। तो हमेशा बिलीव ऑन योर हार्डवर्क, हार्डवर्क करो, फल जरूर मिलता है। आज नहीं मिलेगा तो कुछ आने वाले कुछ टाइम में मिल जाएगा। किस्मत ऑलवेज मैटर। मैं तो ये मानता हूं कि 10-15% आपका लक जरूर मैटर करता है, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, तब मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मुझे नहीं पता आपकी किस्मत कैसी है, लेकिन हाँ, लक ऑलवेज मैटर। बट ये है कि हार्ड वर्क मस्ट बी देयर। अगर हार्ड वर्क है तो ये लगा के चलो कि काम होगा ही होगा। कोई दुनिया की ताकत, भगवान भी को भी झुकना पड़ेगा अगर आपने हार्ड वर्क कर दिया, ठीक है। चलो, सो आई एम क्लोजिंग दिस सेशन। तो आई होप यू गाइज बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शंस। तो काइंडली प्रैक्टिस इट, आप इसकी प्रैक्टिस करिए
ठीक है जी। और उसके बाद फिर मैं कल थोड़ा सा इसमें एडवांस चीजें करवाने वाला हूँ कि पॉइंटर्स के साथ फंक्शन को कैसे खेलना है, एरेज के साथ फंक्शन में कैसे खेलना है। ठीक है जी। होप you like this session and thank you for listen me patiently. Thank you.